Start. Good afternoon, everyone. Today is 5th of December, and we are back again with our regular current affairs analysis, newspaper analysis. Today, in first 5 minutes, we will be discussing the questions we had framed on the CNA of 4th of December. कल के CNA के. So we'll do that, and then we'll start with today's articles. Before we proceed, I've been telling you since last 3 days regarding the pre-fit program of CSAP. एक सिंगल प्रोग्राम है जिसमें 15,000 MCQs का एक इकोसिस्टम क्रिएट किया, following which you will be able to clear APSA prelims with highest probability, and clearing UPSC prelims का probability will grow exponentially. ठीक है. So I would sincerely urge you कि आप जो प्रीफिट प्रोग्राम है उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन लीजिए. यहाँ पे जो नंबर मेंशन है वहाँ पे आप कांटेक्ट करके डिटेल्स ले सकते हैं, या फिर प्रीवियस 2 दिन के CNA देख लीजिए, उसमें मैंने इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट CNA ऑफ 5th ऑफ दिसंबर. आज ये 5 आर्टिकल हम कवर करेंगे. पहला है वर्ल्ड सॉइल डे, सेकेंड इज ध्रुव एंड डीजे पिन. ये ध्रुव और डीजे पिन बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव है which is going to transform how we look for addresses of people, है ना. तो उसको हम थोड़ा ठीक से देखेंगे. थर्ड इज PM वानी स्कीम, ये पब्लिक वाईफाई नेटवर्क स्कीम के रिगार्डिंग है. फोर्थ इज इंडिया फर्स्ट ऑल इलेक्ट्रिक ग्रीन टग. फिर मैं उसमें आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि ये टग होता क्या है एंड ऑल ग्रीन टग का रोल क्या है. एंड द लास्ट वन इज GLP-1 ड्रग. तो पहले जो 2 आर्टिकल्स है, वर्ल्ड सॉइल डे एंड ध्रुव डीजीपिन, ये दोनों मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, और नीचे के जो 3 आर्टिकल है वो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. वी विल डिस्कस ऑल ऑफ देम, बट बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग दोस, लेट्स क्विकली ट्राई एंड सॉल्व MCQs of yesterday's CNA, that is 4th of December. This is our QR code of Telegram channel. You can scan it and join the Telegram group to get access to all the infographics and important PDFs. Our next foundation batch will be starting on 9th of December. You can contact on this number to get details. I would suggest that you connect on this number just to gain more information about pre-fit. उसके लिए मेरा एक छोटा शॉर्ट वीडियो भी है YouTube के ऊपर, CSAP के चैनल के ऊपर, आप उसको भी देख सकते हैं, एंड यू कैन गेट अ ब्रीफ आइडिया, ब्रीफ ओवरव्यू रिगार्डिंग व्हाट इज प्रीफिट प्रोग्राम. ऑलराइट, सो ये 5 MCQs थे जो कल के CNA में थे. विल गो थ्रू देम वन बाय वन. विल ट्राई एंड फिनिश ऑल दोस 5 MCQ विद इन 5 मिनट्स. फर्स्ट MCQ था, which of the following gaps in current livability or prosperity indices contribute most directly to increased climate vulnerability in rapidly urbanizing regions. The question is asking about कौन से ऐसे gaps है कि जो indices नहीं follow करता है, indices में कौन से चीजें missing है, इसके बारे में question है. First is failure to measure drainage capacity for extreme rainfall events. Yes, ये indices में missing है. So 1 is correct. So option C is eliminated. Second is overemphasis on connectivity and financial services. Yes, even this is the problem with the current indices. सिर्फ finances या connectivity इसके ऊपर ही ज़्यादा emphasis दिया जाता है, जो basic bare minimum requirements है उसके ऊपर emphasis नहीं है. तो statement 2 is also correct. So option B is eliminated. So either it is A 1 2 3 5 or D 1 2 3 4 5. So the idea, इससे ये पता चल जाता है कि statement 3 is also correct, statement 4 is also correct, right? The question is, what about statement number 4? Measurement of education and health facilities. ये gap में नहीं है. This statement is wrong because it is a part of indices. It is not missing from the indices. So 4th statement present है, that is it's wrong. So correct option would be A,
1, 2, 3 and 5. सेकेंड MCQs, सेकेंड आर्टिकल जो था कल का, that was regarding mineral capacity, mineral policy. Which of the following measures, that means which of the following actions can directly strengthen the India's midstream critical mineral capacity? यहां पे कीवर्ड है डायरेक्टली. डायरेक्टली कर सकता है क्या? ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये इंटेंशनली डिफिकल्ट दिया सो दैट यू गेट एन आइडिया कि दो प्रोबेबल आंसर्स में से कैसे आप करेक्ट आंसर पे जा सकते हो. फर्स्ट स्टेटमेंट इज एम्बेडिंग रेयर अर्थ रिकवरी यूनिट्स in critical mineral processing parks. Yes, it is a necessity, so C is eliminated. Mandating domestic sourcing of inputs for strategic sectors. Domestic sourcing का मतलब है कि अभी जो critical minerals हम यूज करते हैं इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, वो लार्जली इंपोर्ट किए हुए हैं. अगर हम इंडियन प्रोड्यूस्ड क्रिटिकल मिनरल यूनिट्स को यूज करने का अगर आप कंपल्शन लेकर आते हैं तो विल नॉट दैट हेल्प अस? Answer is yes. So statement 2 is also correct. So D is eliminated. Now, if you look at the remaining options, options are 1, 2, 4, 5, 1, 2, 4 only. So 4 is correct, 3 is eliminated. The question is about statement number 5. पहले हम तीसरा भी statement पढ़ लेते. Increasing raw ore exports to स्टेबलाइज ग्लोबल सप्लाई चेन. अगर आप एक्सपोर्ट कर दोगे तो इंडिया में नहीं रहेगा ना, तो इंडिया का कैसे आपको यूटिलिटी हो जाएगा? तो ये स्टेटमेंट वैसे भी इनकरेक्ट है. फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑप्शन सी पता चल गया, क्रिएटिंग डिमांड अश्योरेंस मैकेनिज्म थ्रू ऑफ टेक कमिटमेंट्स. फिफ्थ इज एक्सपांडिंग एक्सप्लोरेशन लाइसेंसेस अंडर द MMDR एक्ट. ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, लेकिन प्रॉब्लम इसमें यह है कि क्वेश्चन में पूछा है कि डायरेक्टली स्ट्रेंथन करेगा क्या. यहाँ पे एक्सप्लोरेशन लाइसेंस है, मतलब आप जाके देख लो, है तो है, नहीं है तो क्या कर सकते हो, आप बस एक्सप्लोर करके देख लो. ये डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, ये पोटेंशियल सोर्स है कंट्रीब्यूशन का. इनडायरेक्टली कर सकता है, शायद फ्यूचर में कभी कर सकता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं करेगा. सो टेक्निकली बिकॉज ऑफ दिस डायरेक्टली वर्ड, स्टेटमेंट 5 विल बिकम इनकरेक्ट. द करेक्ट ऑप्शंस विल बी ऑप्शन नंबर B, that is 1, 2 and 4 only. Question number 3, it was regarding invasive alien plant species. ये भी difficult question है. Chromolena odorata is currently expanding faster than any other major invasive species in India. Correct? आपने CNA देखा है तो आपने ये statement देखा है कि ये correct है. Second is Prosopis juliflora spreads primary in high fire frequency regions with declining rainfall. No. ये चलो, अगर आपको इस स्टेटमेंट के बारे में कंफ्यूजन भी तो इसको 2 मिनट के लिए साइड में रख दो, इसके डिटेल्स अगर नहीं पता. Nearly 2/3 of India's natural ecosystem contains at least 11 major invasive plant species. Yes, this is correct. Last is invasive plant in India have affected over 1 lakh square kilometer of tiger habitat. This is also correct. So we need an option जहाँ पे 1, 3 and 4 ये तीनों करेक्ट हो. So B भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया. Now the correct option is 1, 3 and 4. Second statement is wrong because Prosopis juliflora does not spread primarily in high fire frequency region. जहाँ पे ज्यादा फायर है वहां पे वो क्यों स्प्रेड करेगा, वो खुद ही जल जाएगा ना. With reference to the project 17A of frigates, consider the following statement. They are equipped with combined diesel or gas CODOG propulsion system. Statement is correct. BrahMos missiles and MF Star radar are part of their weapon and sensor suite. ये भी correct है. Their indigenization level is less than 50%. No. Statement में कल के आर्टिकल में हमने देखा है कि इंडिजनाइजेशन का कंपोनेंट जो है इट इज 75%. आई हैड एम्फसाइज्ड वेरी वेल ऑन दिस पॉइंट कि 75% मिनिमम इंडिजनाइजेशन से कंपोनेंट है. इंडिया से कंपोनेंट लोकली मैन्युफैक्चर 75% है, तो लेस देन 50% इज रॉन्ग.
So correct answer statement 3 is wrong. So ये गया. The correct answer will be A. This was the final question of 4th December CNA. Consider the following regarding disaster risk reduction. The Sendai framework emphasizes understanding disaster risk as a priority for action. Yes, this is correct. So 1 is correct, तो only 2 तो चला गया. The Sendai framework includes both natural and man-made hazards within its scope. Statement 2 is also correct. तो एक ही ऑप्शन बचा 1 and 2, क्योंकि A and B में स्टेटमेंट 2 है ही नहीं. फिर भी हम थर्ड स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं. प्राइमरी गोल ऑफ द सेंदाई फ्रेमवर्क इज टू अचीव डिजास्टर प्रिवेंशन बाय एलिमिनेटिंग ऑल हजार्ड्स. अरे ऑल हजार्ड्स, इतना एक्सट्रीम स्टेटमेंट. ऑल हजार्ड्स, सारे के सारे हजार्ड्स कैसे एलिमिनेट कर पाओगे आप, स्पेशली सेंदाई फ्रेमवर्क के थ्रू. सो आंसर इज 1 and 2. अंडरस्टूड. द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज डी. I hope you had mentioned your answers in the comment section, or you had attempted these questions on Telegram channel और ऑन व्हाट्सएप. वहां पे भी ये क्वेश्चंस आपके लिए अवेलेबल किए गए. वहां पे बस आपको क्लिक करना है, वहां पे आपको बस ऑप्शन सिलेक्ट करना है, आपको करेक्ट इनकरेक्ट आंसर वहीं पे पता चल जाएंगे. ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट article of today's newspaper, which was important, it is important from the perspective of the mains, is World Soil Day. 5th December is celebrated as World Soil Day. ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है. देखो डिटेल्स में हम जाएंगे, लेकिन एक ओवरव्यू ले लेते हैं. सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे एग्जिस्टेंस का. उस सॉइल का कंजर्वेशन करना, उस सॉइल के इश्यूज को हाईलाइट करना, उस सॉइल के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करना, इस पर्पस से सॉइल के लिए सेंसिटाइज करना सोसाइटी को, इस पर्पस से यूनाइटेड नेशन ने 2013 में ये डिसाइड किया था कि 5th दिसंबर को हम वर्ल्ड सॉइल डे सेलिब्रेट करेंगे. अब 5th दिसंबर को ही क्यों, 2 दिसंबर को क्यों नहीं, 10 दिसंबर को क्यों नहीं, उसके बारे में हम आर्टिकल में देखते हैं. इट इज टू कॉमेमोरेट बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अ किंग जिन्होंने सॉइल कंजर्वेशन में बहुत काम किया था. ठीक है, तो इस साल का जो था वो अर्बन सॉइल के बारे में था. अर्बन सॉइल क्यों इंपॉर्टेंट है, आप सोचोगे कि सॉइल तो यार यहाँ पे होती है, खेतों में होती है, गांव में होती है, जिसका सॉइल का यूज होता है. अर्बन सॉइल्स क्यों इंपॉर्टेंट है? अर्बन सॉइल्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अर्बन सॉइल्स वर्क एज अ हीट एब्सॉर्प्शन, कार्बन एब्सॉर्प्शन मैकेनिज्म, वाटर एब्सॉर्प्शन मैकेनिज्म का भी काम करता है. अर्बन सेंटर्स में हीट आइलैंड प्रोड्यूस होता है. उन हीट आइलैंड को भी कंट्रोल करने के लिए, ग्रीन कवर देने के लिए सॉइल की जरूरत होती है. इसलिए इस साल का जो वर्ल्ड सॉइल डे है दैट फोकसेस ऑन अर्बन सॉइल्स, उसी को हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं. ये जो दिसंबर 5th को सेलिब्रेट किया जाता है, इट इज अंडर FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. FAO यूनाइटेड नेशन जो है UN का एक इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल बॉडी है. 2025 का जो थीम है हेल्दी सॉइल्स फॉर हेल्दी सिटीज, अर्बन सॉइल के ऊपर इन्होंने फोकस किया है. इट हाईलाइट्स दैट वी आर शिफ्टिंग फोकस फ्रॉम रूरल फार्मलैंड्स टू द ऑफन नेग्लेक्टेड सॉइल बीनीथ द अर्बन लैंडस्केप. ये क्यों ज्यादा जरूरी हो जाता है? क्योंकि आज के डेट में ग्लोबल पॉपुलेशन का रूरल एरिया में रहने वाला जो पॉपुलेशन है वो 44% है, एंड द 56%, मोर देन हाफ ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन सिटीज नाउ. तो जहां पे वर्ल्ड का मोर देन हाफ पॉपुलेशन रह रहा है, उन सॉइल को आप इग्नोर नहीं कर सकते. 56% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन नाउ लिव्स इन अर्बन सेंटर्स. थोड़ा बैकग्राउंड, व्हाई वाज इट अडॉप्टेड, व्हेन वाज इट अडॉप्टेड? इट वाज अडॉप्टेड इन 2013. The date is chosen as the birth anniversary of the late King Bhumibol Adulyadej of Thailand. थाईलैंड के ये किंग थे. इनका नाम अगर आपको याद नहीं रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं, किंग के नाम नहीं पूछे जाते इतने. थाईलैंड के किंग थे वो भी. वर्ल्ड सॉइल डे is celebrated to commemorate or to remember
the contribution of the king of Thailand, who contributed immensely in conservation of soil. Soil health के बारे में उनका काम बहुत ज्यादा था और उन्हीं के नाम पे वर्ल्ड सॉइल डे अवार्ड भी दिया जाता है. क्यों इंपॉर्टेंट है इतना सॉइल? जो हम खाना खाते हैं किसी भी तरीके का, उसमें से 95% ऑफ द फूड 95% ऑफ द फूड कम्स फ्रॉम द सॉइल. रिमेनिंग 5% कहां से आता है? नॉन वेज फूड, फिश, वाटर बॉडीज से आने वाला फूड, यहाँ से 5% फूड आता है. लेकिन 95%, अगर आप नॉन वेजिटेरियन भी हो तो भी आप राइस के साथ खाओगे, दाल रोटी के साथ खाओगे, पूरी के साथ खाओगे, किसी भी चीज के साथ खाओगे, वो आता तो सॉइल से ही है. तो ओनली 5% कम्स फ्रॉम नॉन सॉइल सोर्सेज, बट 95% कम्स फ्रॉम द सॉइल. ऑल्सो जो प्लांटेशन के लिए, ट्रीज के लिए, एग्रीकल्चर के लिए जो 18 इसेंशियल मिनरल्स है, उसमें से 15 सिर्फ सॉइल से आते हैं और 3 एयर या वाटर इन अदर सोर्सेस से आते हैं. सो प्लांट लाइफ, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा को अगर आपको प्रोटेक्ट करके रखना है तो सॉइल को प्रोटेक्ट करना इज एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी. अब समझते हैं कि इस साल जो 2025 का जो अर्बन सेंटर्स को सेंट्रलिटी देकर जो थीम लाया गया, why these cities are important, why the soil of the cities are important, इसके बारे में थोड़ा सा मैंने आपसे डिस्कस किया था, बट अब थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं. एक, क्लाइमेट चेंज एंड अर्बन हीट आइलैंड का इफेक्ट अर्बन सिटीज में बहुत ज्यादा है. उनको मिटिगेट करने के लिए जो अर्बन सॉइल्स है उनको प्रोटेक्ट करना इज अ नेसेसिटी. यू कैनॉट इग्नोर अर्बन सॉइल्स फॉर दीज टू रीजंस. सेकंड इज फ्लड मैनेजमेंट एंड वाटर रेगुलेशन. अर्बन सेंटर्स में फ्लड का इम्पैक्ट डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई होता है. आप गुवाहाटी को ही देख लीजिए, मुंबई को देख लीजिए, थोड़ा बारिश नहीं हुआ पूरा चोक्ड हो जाता है, पूरा सिटी कुछ टाइम के लिए रुक जाता है जब तक वो पानी ड्रेन होकर बाहर ना निकल जाए. अगर आपकी सॉइल एक्सपोज है तो सॉइल बहुत सारा पानी एब्सॉर्ब कर लेती है. लेकिन अगर आपके शहर में सिर्फ रोड है, सिर्फ सीमेंट के जंगल है, कोई पे कहीं पर भी जमीन एक्सपोज ही नहीं है, तो पानी कहाँ जाएगा? सीमेंट से, रोड से कहीं ना कहीं बहकर कहीं तो जमा होगा. अगर वहां पे अगर जमीन होती तो वो एब्सॉर्ब हो जाता कुछ हद तक, है ना. तो फ्लड प्रिवेंशन एंड वाटर रेगुलेशन के लिए आपको सॉइल की जरूरत पड़ती है, बिकॉज इट सॉइल एक्ट्स एज अ नेचुरल स्पंज. थर्ड इज, बहुत सारे सिटीज में, इंडिया में हालांकि उसका प्रोपोर्शन कम है, लेकिन ग्लोबली देयर एग्जिस्ट अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड अर्बन एग्रीकल्चर. अर्बन सेंटर्स का खुद का अपना एक छोटा लेवल पे एग्रीकल्चर एग्जिस्ट करता है, जहां पे सब्जियां, फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स आसपास के इलाकों से ही लाया जाता है. दैट इज कॉल्ड अर्बन एग्रीकल्चर. सो ये अर्बन एग्रीकल्चर एंड जो बायोडाइवर्सिटी है उसको सपोर्ट करने के लिए भी अर्बन सिटीज के सॉइल को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है. फोर्थ इंपॉर्टेंट इज एनहांसिंग मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ. जो अर्बन सेंटर्स में रहता है, दे आर अंडर कॉन्स्टेंट प्रेशर, दे आर अंडर कॉन्स्टेंट स्ट्रेस. वर्क स्ट्रेस हो गया, फैमिली स्ट्रेस हो गया, फाइनेंशियल स्ट्रेस हो गया, EMIs हो गए, क्लोज कॉन्वर्सेशन करने के लिए क्लोज फ्रेंड्स का एब्सेंस हो गया, वर्चुअल वर्ल्ड में जीना हो गया. इसके वजह से दे आर ऑलवेज अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशंस. तो ऐसे सिचुएशन में अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंडर जब वो रहते हैं, तो व्हाट इज अ वे आउट फॉर देम? इज देयर एनी वे वेयर इन विच दे कैन वर्क? इज देयर एनी वे वेयर थिंग्स कैन हेल्प देम? ऐसे सिचुएशन में टेकिंग केयर ऑफ सॉइल, making cities green, growing trees, urban plantation, regenerative plantation जो होता है, वो इस स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करता है, साउंड पोल्यूशन को कम करने में हेल्प करता है, एंड दैट लीड्स to the improvement of mental health and physical health of the people living inside the cities. That is why bringing soils of the urban centers to the forefront of the world soil on the occasion of World Soil Day is a step in good direction.
अब ये तो देख लिया कि अर्बन सॉइल्स को सेंट्रलिटी देना क्यों जरूरी है. नाउ लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड अर्बन सॉइल के अपने चैलेंजेस क्या है. वो चैलेंजेस रिलेटिवली सिंपल है समझने के लिए. एक, सॉइल डिग्रेड हो रही है. क्यों डिग्रेड हो रही है? वेस्ट कहाँ जाता है? जो कूड़ा जमा होता है, जो कचरा जमा होता है, वो कहाँ जाता है? आपके शहर में ही उसको लैंडफिल्स में डंप किया जाता है. उसका डिस्पोजल आपके शहर में किया जाता है. जो आपके घर में कपड़े धुलते हैं, जो बर्तन धुलते हैं, जो इंडस्ट्रीज चलती है, वहां से जो क्लीन अप वाला वाटर है वो कहाँ जाता है? इवेंचुअली इट ड्रेन्स इनटू द सॉइल. रिवर में जाने से पहले वो सॉइल को भी डिग्रेड करते हुए निकलता है, राइट? तो डिग्रेडेशन है मेजर कॉन्स्टेंट. जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इट हैज एस्टिमेटेड कि 33% मतलब 1/3 ऑफ अर्बन सॉइल is already degraded. Third is contamination, industrial pollutant, heavy metals. Fourth is compaction. Compaction का मतलब होता है कंप्रेस करके रखना. अब आप मुझे बताइए कि जिस सॉइल पे पहले पेड़ हुआ करते थे या कुछ नहीं भी था, वहां पे आपने 5-5, 8-8 फ्लोर्स के बिल्डिंग बना दिए. एक ही जगह पे आपने इतने बड़े बड़े बिल्डिंग जब बना देते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हो, कोई ब्रिज एस्टेब्लिश कर देते हो, सीमेंट एस्टेब्लिश कर देते हो, तो उसका वेट कहाँ जाएगा? वेट तो उस सॉइल पे पड़ेगा ना. सो बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ दीज इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स, जो सॉइल होती है वो कॉम्पैक्ट हो जाती है. तो उसका कॉम्पैक्शन इज मेजर चैलेंज इन टेकिंग केयर ऑफ अर्बन सॉइल. नेक्स्ट मेजर चैलेंज इज सॉइल सीलिंग. सील्ड हो जाती है सॉइल. ऊपर से कंक्रीट डाल दिया, ऊपर से रोड बिछा दिया, ऊपर से कनाल बिछा दिया, सॉइल सील हो गए. इट्स एक्सपोजर टू द एनवायरनमेंट हैज बीन सील्ड. इंटरेक्शन विथ एयर वो कंप्लीटली लिमिट हो जाता है. एंड देन लॉस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. क्यों? ऊपर से सीमेंट डाला हुआ है अर्बन है, तो ऑर्गेनिक मैटर जाएगा कहाँ पे? कहाँ से आएगा? लीटर फॉल नहीं है, नो ऑर्गेनिक डिकम्पोजर्स प्रेजेंट कंपेयर टू द ऊपर जो लिविंग मटेरियल है उनके कंपैरिजन में नीचे कुछ नहीं बचता है ना. सो ये सारे चैलेंजेस है जो अर्बन सिटीज के सॉइल को थ्रेटन करता है. सो हाउ आर वी प्लानिंग टू वर्क ऑन दीज चैलेंजेस? इसके लिए कुछ ब्लूप्रिंट की जरूरत है, कुछ एक्शनेबल चीजों की जरूरत है. फर्स्ट, जो सॉइल है उसको रिस्टोर करिए. सॉइल का रेगुलर टेस्टिंग करेंगे, उसके लैकिनस को आइडेंटिफाई करेंगे, उसको रिजुवेनेट करने के लिए क्या आप कर सकते हो वो स्टेप्स लेंगे. जैसे कि आप सॉइल टेस्टिंग के बाद उसके जब सॉइल प्रोफाइल बन जाएगी, सॉइल कार्ड बन जाएगा, उसमें आपके क्या इंग्रेडिएंट्स कम है, क्या इंग्रेडिएंट एक्सेस में है, उस हिसाब से आप स्टेप्स लोगे उसको रिजुवेनेट करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए. फिर प्रमोटिंग ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि रेनफॉल के गार्डन्स बना लिए, आपके बायो वेस्ट से आप गार्डन बना लेते हो, टेरेस के ऊपर गार्डन बना लेते हो, बिल्डिंग के टेरेस के ऊपर बना देते हो, या होम ग्रोन हाइड्रोफोनिक्स जैसा सिस्टम एस्टेब्लिश कर देते हो. सो दैट विल हेल्प इन प्रमोटिंग ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर. या रोड साइड आपने परमिएबल पेवमेंट्स लगा दिया, पूरा सीमेंट का लगाने की जगह पे जहां से पानी नीचे जा सकता है, ऐसे कुछ पेवमेंट्स बना दिए. थर्ड इज बूस्टिंग अर्बन एग्रीकल्चर, है ना. जैसे कम्युनिटी गार्डन हो गया, रूफटॉप गार्डन हो गया, रूफटॉप एग्रीकल्चरल सिस्टम हो गया, ये सब आप प्रमोट करके ग्रीन कवर बढ़ा सकते हो. लास्ट, सस्टेनेबल सॉइल मैनेजमेंट हो सकता है, एंड लोगों के बीच में अवेयरनेस फैला सकते हो. दैट मीन्स सॉइल लिटरेसी जनरेट कर सकते हो. दैट ऑल दीज टुगेदर विल हेल्प टू रिस्टोर, कंजर्व द अर्बन सॉइल and add to the quality of the life. I would request you to pause the video and try and attempt this MCQ. Please attempt this MCQ. Mention your answers in the comment section. If not, you can access these questions via Telegram. वहाँ पे options के साथ आएंगे, उसमें से आपको जो सही ऑप्शन लगता है उसके ऊपर क्लिक करके देखिए, उसमें आपको करेक्ट आंसर्स पता चल जाएगा. Try and attempt this. Let's move on to the second article. This, I will sincerely ask you to please focus on this article because this is going to be a game changer for next
2-3 डिकेड्स इन इंडिया। आपको मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर हम लोग डिटेल में देखेंगे। अभी कैसा है, जो यूपीआई ने पेमेंट में किया है वो ध्रुव और डीजे पिन आपके एड्रेस पे करने वाला है। मीनिंग पहले आपको जैसे ट्रांजैक्शन करना होता तो आपको सारे बैंक के डिटेल्स देने पड़ते थे ना, बैंक नेम, अकाउंट डिटेल्स, आईएफएससी कोड, ब्रांच कहाँ पे है, अकाउंट नंबर क्या है, ये सब देना पड़ता था, राइट। लेकिन उसके जगह पर अभी सिर्फ आपको यूपीआई आईडी देना पड़ता है, राइट। उस यूपीआई आईडी के वजह से आपके फाइनेंशियल क्रेडेंशियल जो है वो सिक्योर्ड है। आपने यूपीआई आईडी दिया, क्यूआर कोड स्कैन करवा दिया, दैट्स इट। उसमें जो आपको पैसा दे रहा है ना, उसको आपके अकाउंट डिटेल्स पता चलते हैं ना, बैंक ब्रांच पता चलती है, कुछ नहीं। ट्रांजैक्शन हो जाता है, आपके अकाउंट में चला जाता है, आपका डेटा सेफ रहता है। वैसे ही अभी जब आप किसी से कुछ ऑर्डर कर रहे हो, आपके घर पे कुछ भी अगर डिलीवर हो रहा है तो आपको पूरा एड्रेस देना पड़ता है ना। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर अमेजोन से कुछ मंगा रहा हूँ या मैं मेरे दोस्त को कहता हूँ कि तेरे पास जो किताब है वो मुझे कुरियर कर दे, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसे पूरा एड्रेस देता हूँ, नेम XYZ, फ्लैट नंबर XYZ, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं फ्लैट नंबर 31, फ्लोर 10th, पिया एक्सोटिका, गुलमर्ग, XYZ रोड, XYZ डिस्ट्रिक्ट, XYZ स्टेट, पिन कोड। इतना बड़ा डिटेल देता है। कई बार हम उसमें हैप्पैज़ार्ड में भी डिटेल्स दे देते हैं कि ये ऑफिस के सामने, ये बड़े से दुकान के पीछे, ये वाले गली में लेफ्ट साइड में, ऐसे एड्रेस देते हैं, राइट। तो ये सब अब नहीं देना पड़ेगा। ये डीजी पिन और ध्रुव ये यूपीआई पेमेंट जैसा आपके फिजिकल एड्रेस को एक यूनिक 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड देगा, जिसमें फॉर एग्जांपल जैसे अभी आपका यूपीआई कोड क्या, यूपीआई कैसे होता है। फॉर एग्जांपल मेरा, अगर मैं यूपीआई, मेरा एक्चुअल यूपीआई नहीं है, आप उसके ऊपर कोई ट्रांजैक्शन मत करना, मैं एक एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ। लेट्स से कि मेरा अगर यूपीआई ऐसा है, Mayur03 लेट्स से ओके SBI, ये मेरा यूपीआई का आईडी है, राइट। सिमिलरली लेट्स से कि अगर मैं अभी मैं गुवाहाटी में रहता हूं, तो मेरा इसका ध्रुव का या डिजिपिन का आईडी ऐसे कुछ बन जाएगा जो मुझे बनाना है। लेट्स से Mayur03 गुवाहाटी, इस तरीके से बन जाएगा। अब इसके बाद में मुझे सिर्फ इतना देना होगा, इसके पीछे 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड होगा। उस अल्फा न्यूमेरिक कोड से जिसके साथ भी मुझे ट्रांजैक्शन करना है, जैसे कि मुझे कहीं से कुछ मंगवाना है, उसको एग्जैक्टली एड्रेस मिल जाएगा, उसको डिटेल्स की जरूरत नहीं, मेरा पार्सल, मेरी डिलीवरी जो भी है, मेरा लेटर मेरे घर तक पहुंच जाएगा। अभी ऐसा होता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास कोई फ्लिपकार्ट का पार्सल आया, आपने उसको डिलीवरी ले ली, उसके ऊपर का जो बॉक्स है वो आप फेंक देते हो ना, उस बॉक्स पे कई बार आपके डिटेल्स भी होते हैं, वो कहीं यहाँ से कूड़े के डब्बे में जाएगा, वहां से आपका जो एड्रेस है वो एक्सपोज्ड है, पीपल कैन यूज इट, पीपल कैन मिस यूज इट, पीपल कैन डू एनीथिंग अबाउट इट, राइट। तो वो उस लेवल का प्राइवेसी आपको देने के लिए ये आता है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको अंडरस्टैंड ये करना है कि आपका जो डीजी पिन होगा, जो ध्रुव से आपका यूनिक आईडी आएगा, वो कितना पिन पॉइंट है, तो 15 स्क्वायर इंच, सिर्फ इतने छोटे से बॉक्स तक का यूनिक आईडी बन चुका है। मीनिंग पूरे इंडिया में लगभग 285 बिलियन, अंडरस्टैंड दिस, 285 बिलियन प्रिसाइज ये 10 डिजिट कोड बन गए। आप उनको एक्सेस करोगे, उसको यूज करोगे, सो दैट प्रिसाइजली डिलीवरी आपको मिलेगी। ये कहां पे फायदेमंद है, जैसे कि फ्लड आया, कोई डिजास्टर आया, तो आपका एग्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेशन डिलीवर करने के लिए वो यूज होगा।
इसको यूज करके यूएवी से या ड्रोन से डायरेक्ट डिपॉजिट किया जा सकता है, डायरेक्टली छोड़ा जा सकता है। इसका ज्यादा फायदा होगा रूरल एरिया में, सेमी अर्बन एरिया में, जहां पे फिक्स रोड के नाम नहीं होते, फिक्स नंबर नहीं होते, फिक्स घरों के नंबर नहीं होता है, घर के सिर्फ नाम होते हैं। जैसे कि किसी गांव में चले गए, मयूर सदन नाम का घर है, उसका ना घर नंबर है, ना स्ट्रीट नंबर है, ना कुछ नहीं, सिर्फ इस गांव में रहता है। ये सब हटाने के लिए ये सिंगल पॉइंट आएगा, ध्रुव और डीजीपिन। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है फॉर नेक्स्ट 2-3 डेकेड्स। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये रिलीज किया है, ये अब ये थोड़ा ये ऐसा कंटेंट है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ये पीडीएफ से भी आप पढ़ लोगे तो भी आपको समझ में कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये ध्रुव का फुल फॉर्म है डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। डिजिटल हब for reference and unique virtual address, that is Dhruv. It has been introduced with the amendment to the Post Office Act of 2023. ये एक इंटरऑपरेटेबल स्टैंडर्डाइज कंसेंट बेस्ड वर्चुअल एड्रेसिंग है। इसमें डीजीपिन होगा 10 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक जियो कोड, जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे वही, जस्ट लाइक हाउ UPI has transformed the payments. It is going to revolutionize the way things are delivered, the way parcel system या physically जो भी कुछ डिलीवर होता है उसको पूरी तरीके से रिवोल्यूशनरी तरीके से इसको वो ट्रांसफॉर्म करेगा। ये क्या है, जैसे हम डिस्कस कर चुके, ये एक यूनिवर्सल इंटरऑपरेटेबल एड्रेसिंग सिस्टम है, ये यूजर सेंट्रिक है और यूजर का कंसेंट होगा तो ही उसको यूज कर पाएंगे। अ प्लेटफॉर्म एनेबलिंग प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इसमें आ जाएगा। मतलब क्या है, क्या आपने कहा कि ये मेरा एड्रेस है और ये सिर्फ 2 दिन के लिए आपके पास रहेगा या 2 घंटे के लिए आपके पास रहेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो डिलीट हो जाएगा। इतना आपको उसका सेंस ऑफ प्राइवेसी मिलेगा। इसका ये इसमें लिखा नहीं है, पीपीटी में लिखा नहीं है क्योंकि वो थोड़ा सेंसिटिव है, इसे मैं आपको ये ओरली बता देता हूँ। इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट जो होगा वो यंग एज्ड विमेन को होगा, क्योंकि उनका एड्रेस कहीं से निकाल के उनको हरास किया जाता है, कुछ चीजें भेजी जाती है उनके घर पे, कुछ अननेसेसरी रोमियोज जो होते हैं वो फ्लावर भेज देंगे, कुछ ये भेज देंगे, कुछ वो भेज देंगे। क्यों? क्योंकि वो एड्रेस पब्लिकली अवेलेबल है, कहीं से वो उन्होंने एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब ये जब ध्रुव या डीजीपिन आ जाएगा तो वो नहीं कर पाएंगे, दे विल नॉट बी एबल टू डू इट। मतलब ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट का उसका प्रोपोर्शन बहुत कम हो जाएगा। क्यों जरूरत था? क्योंकि इंडिया का जो एड्रेस सिस्टम है वो नॉन स्टैंडर्डाइज है, इनफॉर्मल है, एम्बिगुअस है, जिसकी वजह से डिलीवरी में चैलेंजेस आते हैं, टैक्सेशन में, पुलिसिंग में, गवर्नेंस में, हर जगह पर चैलेंजेस आते हैं, स्पेशली जो रूरल एंड पेरी अर्बन रीजन है वहां पर। इसके की फीचर्स क्या है? एक वर्चुअल एड्रेस लेबल होगा, जैसे कि सिंपल लेबल लाइक नेम @entity, जो प्रॉक्सी की तरह काम करेगा। दूसरा, ये कंसेंट बेस्ड एड्रेस शेयरिंग है, मतलब जो यूजर है, आप जो दे कैन ऑथराइज एन एंटिटी टू व्यू देयर एड्रेस, जिनको आप चाहते हो उन्हीं को आप ऑथोरिटी दोगे कि ये मेरा एड्रेस है। ये जो रेस्ट्रिक्ट एक्सेस है टू अ स्पेसिफाइड पीरियड, 15 मिनट के लिए देना है, 2 घंटे के लिए देना है, 2 महीने के लिए देना है, एक्सेट्रा। और जब आपका मन करे तब रिवोक कर सकते हो उस एक्सेस को। इससे स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी बिल्ड होगी। नेक्स्ट इज प्राइवेट प्लेयर के साथ इंटरऑपरेबिलिटी हाई है, क्योंकि ये जो पार्टिसिपेशन है ये वॉलंटरी है, नॉट मैंडेटरी है। डीजीपिन इसका फाउंडेशनल लेयर है, जिसमें 10 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक जियो कोड होगा, 14 स्क्वायर मीटर। मैंने आपको जब डिटेल्स दे रहा था तो मैंने 15 स्क्वायर इंच कहा था, तो वो 15 स्क्वायर इंच नहीं है, ये 14 है। 14 स्क्वायर मीटर का एरिया में अराउंड 228 बिलियन यूनिक डीजीपिन्स अभी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका प्रिसीजन हाई है, रिलायबिलिटी हाई है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि इतना स्पेसिफिक पिन पॉइंट लोकेशन जब आपको मिल जाता है तो फायर प्रिवेंशन, फायर सर्विस, ड्रोन बेस्ड डिलीवरीज, एम्बुलेंस पहुंचना, आप कई बार पेशेंट्स के घर तक एम्बुलेंस लेट पहुंचे क्योंकि वो एड्रेस मिलता ही नहीं है। आप सोचिए कि ऐसे सिचुएशन में अगर ये जियो टैग डीजीपिन आपके पास है, ध्रुव आपके पास है, तो वो एम्बुलेंस किसी को पूछने की जरूरत नहीं, वो इट विल रीच टू द डोर स्टेप
एट द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम। अगर आपने कभी नोटिस किया तो फायर ब्रिगेड के जो व्हीकल होते हैं आग बुझाने वाले, कई बार फंस जाते हैं कि पता ही नहीं, एड्रेस ही समझ में नहीं आ रहा, पूछते पूछते जाते हैं कि कहाँ है। तो उन ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में ध्रुव बहुत काम आएगा। इसके पोटेंशियल बेनिफिट improving last mile delivery या enhancing governance या boosting digital economy etc. I'll now request you कि आप please pause the video and try and attempt this MCQ. इसका आंसर आप इसमें भी दे सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर भी दे सकते हैं। नेक्स्ट 3 आर्टिकल जो है वो प्रीलिम स्पेसिफिक है और वो बहुत क्विकली कवर करेंगे, क्योंकि वो मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि प्रीलिम्स के लिए कौन सा कंटेंट इसमें से इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आर्टिकल इज पीएम वाणी। पीएम वाणी जो था वो 2020 में स्टार्ट हुआ था। ये क्यों आया न्यूज में, क्योंकि पार्लियामेंट में पूछा गया कि पीएम वाणी का क्या प्रोग्रेस है, तो उसमें ये डिटेल मिले कि लगभग 4 लाख वाईफाई हॉटस्पॉट जो है वो अब तक डिप्लॉय हो चुके हैं नवंबर 2025 तक। पीएम वाणी क्या है? प्राइम मिनिस्टर्स वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। ये नेशनल वाईफाई फ्रेमवर्क है जो एक अफोर्डेबल वाइड स्प्रेड ब्रॉडबैंड एक्सेस देता है थ्रू डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी। ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का इनिशिएटिव है और ये 2020 में लॉन्च हुआ था। मेंस के पर्सपेक्टिव से डिजिटल डिवाइड को ये ब्रीच करने में हेल्प करता है, अफोर्डेबल है, एक्सेसिबल है और अब लगभग 4 लाख हॉटस्पॉट्स के साथ ये अवेलेबल भी सबके लिए हो गया है। ये पीएम वाणी को अगर आपको एस्टेब्लिश करना है उस वाईफाई को, तो उसके लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। जो आर्किटेक्चर है वो 4 टायर है, मोबाइल डेटा ऑफलोड कर सकते हो एंड यूजर बेस्ड प्रमोशन हो सकते हैं। ये जो डेटा है ये बहुत ज्यादा क्रिटिकली इंपॉर्टेंट नहीं है। आप प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई एंड अटेम्प्ट दिस एमसीक्यू। नाउ जस्ट 2 आर्टिकल्स आर लेफ्ट और दोनों भी प्रीलिम स्पेसिफिक है। इंडियाज फर्स्ट ऑल इलेक्ट्रिक ग्रीन टग। अब इस आर्टिकल में आपके लिए ये समझना जरूरी कि ये इंडिया का फर्स्ट है, ये ऑल इलेक्ट्रिक ग्रीन है और ये टग है। अब आपके लिए दिक्कत वाला इशू ये शायद ये होगा कि ये टग होता क्या है ना। पहले मैं टग क्या होता है वो बताता हूं मैं आपको। कोई बहुत बड़ा टाइटैनिक जैसे बहुत बड़ा अगर वेसल है ट्रांसपोर्ट टाइप, उसके ऊपर वो सामान लाद कर लेकर आता है, ऐसे बहुत बड़ा शिप है ट्रांसपोर्टेशन वाला जिसमें बहुत ज्यादा लॉजिस्टिकल सामान पड़ा हुआ है, कंटेनर्स है, वो सीधा किनारे तक नहीं आते हैं ना, क्योंकि अगर वो इंजन स्टार्ट करेंगे तो शायद दिक्कत आएगी। तो जब तक वो किनारे लगते नहीं है या फिर कोई छोटे शिप्स को उसको ट्रांसपोर्ट कराना पड़ता है, मूव कराना पड़ता है, तो वो जो छोटे पावरफुल छोटे जो इसको टो कर सकते हैं या यहां का माल लेकर आ सकते हैं, उन्हें कहा जाता है टग। टेक्निकली दे आर कॉल्ड एज टग बोट। इंडिया में फर्स्ट ऑल इलेक्ट्रिक ग्रीन टग शुरुआत की गई, इसके लिए ये आर्टिकल है। इसमें सिर्फ ये समझ लो कि टग क्या होता है और ये फर्स्ट इलेक्ट्रिक है, फर्स्ट इलेक्ट्रिक ग्रीन है। Tug is a powerful maneuverable vessel used to assist larger ships in harbor operations such as guide करना कि डायरेक्शन कैसे चेंज करोगे विदाउट स्टार्टिंग द इंजन, या उनको टो करना या उनको बर्थिंग करना या उनको एस्कॉर्ट करना, उनके साथ जाकर रास्ता मेन कनाल तक, मेन रूट तक, मेन उसके रास्ते तक लेकर जाना एंड देन हेल्प इन इमरजेंसी रिस्पॉन्स। स्पेशली जो पोर्ट्स बहुत कन्फाइंड है, बहुत छोटे है, आधे 1-2-4 मीटर का टर्निंग रेडियस से भी स्टक हो जाएगा, ऐसे जगह पर असिस्ट करना का काम होता है टग का। प्लीज पॉज एंड अटेम्प्ट दिस एमसीक्यू। नेक्स्ट इज GLP-1 ड्रग्स। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से सिर्फ ये समझ लो कि GLP-1 ड्रग किसके लिए आता है। ये WHO ने अपना फर्स्ट ग्लोबल गाइडलाइंस रिलीज किया है GLP-1 थेरेपीज के लिए, जो उसका पर्पस है ओबेसिटी को मैनेज करना। दैट्स इट। इसके अलावा इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। GLP-1 थेरेपी है
ये पेप्टाइड है, कहाँ, सॉरी, ये ग्लूकाजोन लाइक पेप्टाइड है, GLP-1। ये रिसेप्टर एग्नोस्टिक है, इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स है, जैसे कि लिराग्लूटाइड है, सेमाग्लूटाइड है, एक्सेट्रा। ये डिटेल्स आपके लिए जरूरी नहीं है, बस इतना आपको ये रेफरेंस समझ लीजिएगा। GLP-1 जो थेरेपी है वो किससे रिलेटेड है, यह है कॉम्प्लेक्स ओबेसिटीज को कंट्रोल करने के लिए, उसके ऊपर की थेरेपी है, एक्सेसिव ओबेसिटी के। ऑल राइट, you can go through the PDF. I would sincerely ask you again to solve this MCQ। इस MCQ को या बाकी के MCQs को आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर ऑप्शन सेलेक्ट करके भी आप उनको सॉल्व कर सकते हो। ऑलराइट, सो ये स्मार्ट बुक्स है जो अब SMS मीडियम में भी अवेलेबल है। यू कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस बुक्स फ्रॉम दिस नंबर एज वेल एज प्रीफिट के बारे में भी आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो प्रीवियस 2 वीडियोस भी देख सकते हो या इस पे कांटेक्ट करके डिटेल्स ले सकते हो। Thank you very much. We'll see you tomorrow on 6th of December with our CNA. क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, या कहीं पे भी टेलीग्राम चैनल पे कहीं पे भी आप कोशिश करिए अटेम्प्ट करने की। गलतियां होंगी, दैट्स फाइन, बट डू इट। थैंक यू, हैव अ गुड डे।